a high balance tree. Before starting ABL tree, first we need to understand what is the drawback of binary search tree. Let assume we have a 5 elements 10, 20, 30, 40 and 50. So the BST of 5 elements is 10, 20, 30, 40 and 50. Now I want to search 50 on this ABL tree. Now 1 comparison, 2 comparison, 3 comparison, 4 comparison and 5 comparison. Total number of comparison is 5. To search 50, it means the last element of the given list. Suppose we have a 500 elements and we need to find out the 499th element. So if we have a n elements, the time complexity to search the element in binary search tree is order of n. To reduce the time, we have a concept of ABL tree in which we have restrict the height of the tree. So with the help of some rotations, we have restrict the height of the tree. So in ABL tree, first is we need to understand what is the balance factor or balancing factor. The balancing factor equals to the height of left subtree minus the height of right subtree equals to, it should be 0, -1 और +1. यदि आपकी ट्री में यदि बैलेंसिंग फैक्टर 0, -1 और +1 है, it means your tree is balanced, otherwise your tree is unbalanced. So height of left subtree means this is the height of left subtree. Height of right subtree means this is the height of right subtree. So balancing factor equals to height of left subtree minus height of right subtree. For example, we have a 3 elements 10, 20 and 30. इनको मुझे ABL ट्री में इंसर्ट करना है. So यदि बैलेंसिंग फैक्टर 0, -1 +1 है, इट मींस आपकी ट्री बैलेंस्ड होगी. अदरवाइज यदि -2 +2 आता है, इट मींस योर ट्री इज अनबैलेंस्ड. ट्री अनबैलेंस्ड है, उस केस में वी हैव अ 4 रोटेशंस. उसको यूज करके आप ट्री को बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने से आप ट्री की हाइट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. हाइट रिस्ट्रिक्ट होने से द कंपैरिजन, जो कंपैरिजन था वो कम होगा. कंपैरिजन कम होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी. सो सपोज 10, 20 एंड 30 3 एलिमेंट्स हैं और यदि BST होता तो मैं इस तरह से तीनों एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देता. बट ABL ट्री में इंसर्शन करने के लिए रूल BST का ही है. इट मींस यदि छोटा एलिमेंट है रूट से, सो आप उसको लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे. यदि रूट से बड़ा है तो राइट में इंसर्शन करेंगे. रूल इज सिमिलर. फॉर एग्जांपल 10 को जैसे ही मैं ABL ट्री में इंसर्ट करूंगा, नाउ आई नीड टू चेक द बैलेंसिंग फैक्टर. सो बैलेंसिंग फैक्टर कैसे चेक करना है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. क्योंकि 10 का कोई लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, इट मींस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0, height of right subtree equals to 0, which is a 0. The balancing factor of root node is 0. It means tree is balanced. Now 20, जैसे 20 को मैंने इंसर्ट किया, 20 को कंपेयर किया 10 से, which is greater as compared to 10, तो 20 आपका राइट हैंड साइड में आ गया. जैसे 20 राइट हैंड साइड में आया, again I need to search the balancing factor or find out the balancing factor. The height of left subtree minus height of right subtree, which is a 0. मतलब balancing factor of 20 is 0. 10 के balancing factor को देखें, so height of left subtree, it means there is no left child, so height is 0, minus height of right subtree, which is a 1, so equals to -1. So -1, it means 0, -1 +1 है तो ट्री आपकी बैलेंस है. मतलब अभी भी हमारी ट्री बैलेंस है, पहले भी हमारी ट्री बैलेंस थी. नाउ insert 30, 10,
20 and 30. 30 यहाँ पे क्यों आया? Because 30 is greater as compared to 10 as compared to 20. That's why right hand side में 20 है. So balancing factor देखें इसका. So balancing factor of 30 is left height of left subtree minus height of right subtree, which is a 0. Height of left subtree minus height of right subtree. 20 का balancing factor -1. 10 के balancing factor की बात करें तो height of left subtree which is 0 minus height of right subtree. Height of right subtree is 1 or 1, 2. So 2 equals to -2. It means this tree is unbalanced. यदि unbalanced है so आपको इसको balance करना पड़ेगा. So balance करने के लिए tree को we have a 4 rotation. और unbalanced कैसे है? कैसे हमने पता किया कि tree is unbalanced? यदि balancing factor 0 +1 और -1 इन तीनों के अलावा कुछ आता है, it means your tree is unbalanced. So unbalanced है, so we have a 4 rotations. 4 rotations है हमारे पास जिसके थ्रू आप ट्री को बैलेंस कर सकते हैं. First one is LL rotation, which is a left rotation. Second one is a RR rotation, which is a right rotation. Third one is a LR rotation, which is a left rotation. Fourth one is a RL rotation, which is a right rotations. LL and RR both are the single rotation. और जब मैं LR और RL की बात करूं, both are the double rotation. अब सिंगल रोटेशन क्या है, डबल रोटेशन क्या है, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं. First, we need to understand the LL rotation. So, left rotation. For example, we have elements 10, 8 and 4. Now, insert the following elements into ABL tree. So, first 10 को जैसे insert किया, 10 becomes a root node. The balancing factor of 10 is 0. Then second one is 8. 8 को जैसे insert किया, 8 is less as compared to 10, so left hand side में आ गया. The balancing factor of 8 is height of left minus height of right, 0. The balancing factor of 10 is height of left subtree minus height of right subtree. Height of left subtree is 1, height of right subtree is 0, which is a 1. Now, third one is insert 4, 10, 8 and 4 is less as compared to 10 or 8, that's why left hand side. Now balancing factor, height of left minus height of right, 0. Height of left 1 minus height of right, which is a 1. Height of left की height कितनी है, 1 और 1 2, और height of right is 0, so height is 2. It means +2. यदि height +2 है, it means your tree is unbalanced. ये unbalanced है. So इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं इसमें कि सबसे पहली चीज हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर आए जिसके आने की वजह से हमारी ट्री अनबैलेंस्ड हुई है. सो आप देखो 10 और 8 थे तब तक मेरी ट्री बैलेंस थी. जैसे ही मेरा 4 इंसर्ट हुआ है बिल्ड ट्री में, 4 के आने की वजह से मेरी ट्री अनबैलेंस्ड हो गई. सो 4 के आने से आपकी ट्री अनबैलेंस्ड हो गई, तो आपको जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के आने से अनबैलेंस्ड हुआ है, सो उससे लेकर उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचना है. तो पहुंचने के लिए एक लेफ्ट लिया मैंने और दूसरा लेफ्ट लिया, तो मैं किस पर आ गया, 4 पर आ गया. अब जैसे ही मैंने लेफ्ट रोटेशंस लगाया यहाँ पर, तो रोटेट कैसे करूंगा, ये ट्री अभी मेरी ऐसी है, अब इस ट्री को मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा. इट मींस ऐसे जब मैं रोटेट करूंगा, सो 8 बिकम्स रूट नोड, 4 लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही रहेगा, और 10 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा. नाउ अब मैं चेक करूं बैलेंसिंग फैक्टर, तो हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट 0, इसका भी 0. हाइट ऑफ लेफ्ट विच इज अ 1, हाइट ऑफ राइट which is a 1, so 1 minus 1 is 0. Now this is a balanced tree. This is a LL rotation. Now second rotation is RR rotation. Second rotation is RR rotation. With the help of one example, we will discuss what is a RR rotation.
Now let assume RR rotation. This is also a single rotation. Let 10, 20 and 30 ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं. Now 10 को फर्स्ट इंसर्ट किया, चेक द बैलेंसिंग फैक्टर. बैलेंसिंग फैक्टर चेक किया 10 का तो 0, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट. 20 जैसे इंसर्ट किया which is greater as compared to 10. So according to BST आपका यदि 10 से ग्रेटर है, रूट से ग्रेटर है तो राइट में इंसर्शन होगा. सो बैलेंसिंग फैक्टर यदि बात करें तो 0, इसके बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो 0 minus 1 which is a -1. Now third 10, 20 and 30 which is greater as compared to root node or 20. Now balancing factor, height of left minus height of right 0, height of left which is 0 minus height of right -1, height of left 0 minus height of right 1 and 1 2. So कितना हो गया 2 which is a -2. ठीक. सो -2 या +2 आ जाए तो ट्री इज अनबैलेंस. यदि इन तीनों में से कोई होता तो ट्री बैलेंस होती. तो इसको मुझे बैलेंस करना है. तो मैंने क्या बोला आपको, एलएल रोटेशन में किसके आने की वजह से आपकी ट्री अनबैलेंस्ड हुई. इट मींस इसकी लाइफ किसके आने से डिस्ट्रॉय हुई. सो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें पहुंचना है. तो इस तक पहुंचना है. 30 के आने से लाइफ डिस्ट्रॉय हुई बिकॉज़ 10 और 20 जब तक थे इसकी लाइफ स्मूथली चल रही थी. नाउ 30 तक मुझे पहुंचना है. 30 तक पहुंचने के लिए भी है रोटेशन आर आर, एक राइट और एक राइट लेकर मैं 30 तक पहुंच गया. जैसे ही मैं 30 तक पहुंचा, नाउ अभी मेरी ट्री ऐसी है. अब इसको मुझे ऐसे ऐसे रोटेट कराना है, ऐसे रोटेट कराना है. सो 20 रूट नोड पे आ गया, 10 मेरा लेफ्ट में आ गया, 30 मेरा राइट में आ गया. नाउ चेक द बैलेंसिंग फैक्टर. द बैलेंसिंग फैक्टर इज 0 0. The height of left 1, height of right 1, which is a 0. This is a balanced tree. Now, third one is a LR rotation. The third rotation is LR rotation. LR rotation, which is the left-right rotation. This is a double rotation. Now what do you mean by double rotation? अभी एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. Let's suppose we have a 10, then 5, then 8. ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं. Now insert 10. The balancing factor is 0. Insert 5 because 5 is less as compared to 10. तो लेफ्ट में आपने इंसर्ट किया. The balancing factor 0. इसका balancing factor 1 because 1 minus 0 which is a +1. Now 8. 8 is less as compared to 10, so आप लेफ्ट में आ गए. बट 8 is greater as compared to 5, so आप 5 के राइट में आ गए. नाउ चेक द बैलेंसिंग फैक्टर. बैलेंसिंग फैक्टर 8 का चेक करा तो 0. यदि बैलेंसिंग फैक्टर 5 का चेक करूं तो हाइट ऑफ लेफ्ट 0 बट हाइट ऑफ राइट इज 1, so -1. द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ 10 का बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है. So 1 1 2, but height of right subtree is 0, so +2 इसका balancing factor है. But +2 है, it means this is a unbalanced. Now unbalanced किसकी वजह से हुआ. 8 के आने से, क्योंकि अभी तक हमारी ट्री बैलेंस थी. अब 8 के आने से अनबैलेंस्ड हुआ, so मुझे 8 तक पहुंचना है. पहुंचने के लिए मेरे पास रोटेशन से RR, LL, LR और RL, इसमें से कौन सा रोटेशन लगेगा उसको देखते हैं हम. सो जो अनबैलेंस्ड हुआ, किसके आने की वजह से अनबैलेंस्ड हुआ, उस तक हमें पहुंचना है. सो एक लेफ्ट लिया और एक राइट लिया, सो मैं 8 तक पहुंच गया. ठीक. सो एक लेफ्ट और एक राइट लेकर जैसे ही मैं 8 तक पहुंचा, सो अब मुझे इस ट्री को बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बोला, LR इज अ डबल रोटेट. डबल रोटेशन मतलब फर्स्ट 8 को आपको ऊपर लाना है. सो 10 8 5 ऐसे बन जाएगा. देन उसके बाद में अगेन फिर से आपको रोटेट करना है. मतलब टोटल 2 रोटेशंस यहां पे लग रहे हैं. बट द डायरेक्ट मेथड इज, आप ये समझें कि जो अनबैलेंस्ड हुआ है, जिसके आने की वजह से अनबैलेंस्ड हुआ है, सिंपल, यदि डबल रोटेशन आप यूज कर रहे हैं, इट मींस यदि आपके पास LR या RL रोटेशन है
तो उनमें से जो भी अनबैलेंस्ड हुआ, जिसके आने की वजह से अनबैलेंस्ड हुआ, इट मींस एक एल और एक आर लेकर या एक आर और एल लेकर आप जिस भी नोड पर पहुंच गए, इट्स बिकम अ रूट नोड. नाउ 5 is less and 10 is greater as compared to 8. क्या मैंने बोला? जो अनबैलेंस्ड हुआ है, जिसके आने की वजह से अनबैलेंस्ड हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए एक लेफ्ट और एक राइट लेकर या एक राइट और एक लेफ्ट लेकर जिस भी पॉइंट पर आप पहुंच गए, जिस भी नोड पर आप पहुंच गए, इट्स बिकम अ रूट नोड. तो 8 क्या हो गया आपका रूट नोड, 5 लेफ्ट में आ गया, 10 राइट में आ गया. नाउ बैलेंसिंग फैक्टर 0 0 1 minus 1 0. This is a perfect balanced tree. Now last rotation is RL rotation. The last rotation is RL rotation, which is also a double rotation. So for example, 10, 20 and 15. Now 10, the balancing factor is 0. 20, 10, 20 is greater as compared to 10. The balancing factor is 0 and 1, 0 minus 1, which is a minus 1. Third one is 15. So 10, 20 and 15. So 10 से greater है but 20 से छोटा है. So 15 left child बन गया 20 का. Now balancing factor 0, 1 minus 0 plus 1. यहाँ पे चेक करें, height of left subtree 0 minus height of right subtree 1 और 1 2. So minus 2. 0 minus 2 minus 2. So unbalanced. कौन अनबैलेंस्ड हुआ? -2. किसके आने से अनबैलेंस्ड हुआ? 15 के आने से. इस तक हमें पहुंचना है. सो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप देखो, एक राइट रोटेशन लिया आपने और एक लेफ्ट रोटेशन लिया. मैंने क्या बोला था इससे प्रीवियस वाले में कि दिस इज अ डबल रोटेशन. डबल रोटेशन ये है कि पहले आपने इसको ऐसे रोटेट किया, देन उसके बाद में आपने दूसरा रोटेशन लगाया. सो डबल रोटेशन. बट मैंने डायरेक्ट मेथड आपको क्या बताई कि जो भी अनबैलेंस्ड हुआ, जिसके आने की वजह से अनबैलेंस्ड हुआ, उस तक पहुंचने के लिए एक आपके पास एल आर है और एक आर एल रोटेशन है. एक आर और एक एल लेकर जिस भी नोड पर आप पहुंच गए, इट्स बिकम अ रूट नोड. सो 15 बिकम अ रूट नोड. So balancing factor is 0 0 0. This is a balanced binary search tree or balanced tree, which is a ABL tree. Now this is all about the basic concept of ABL tree, how to insert into a ABL tree. There are 4 rotations. ठीक. Now इसके related examples के लिए examples we will discuss on the next video. Thank you so much.